So once again, good afternoon to each and everyone here present here. Now, first of all, I'll start with your doubts. If you have any doubt, you all can speak. Tell me your doubts. I'll write in the board, and then I'll start solving each and every question. So please start with your doubts. Tell your doubts. Unmute yourself and tell your doubts. So everyone note down. Question number 6. We know the value of tan theta, which is 1 divided by root 7. But in this one, nowhere it is mentioned that theta lies in which quadrant. सिर्फ tan theta का वैल्यू दिया हुआ है और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec square theta minus sec square theta divided by cosec square theta plus cot square theta sec square theta. और यहां पे इस सब में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है दैट थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई है. ठीक है, तो ध्यान से एक बार नोट करना. The value of tan theta is 1 by root 7. So the value is clearly positive, everyone. The value is clearly positive. And if the value is positive, tell me everyone, tan function is positive in which quadrant? Tan function First and third. Very good. It is positive in first quadrant because in the first quadrant all the functions are positive, and it is positive in the third quadrant as in the third quadrant tan function is positive. तो यहां लिखेंगे हम लोग is positive. Therefore, theta lies in first or third quadrant. अब tan theta के बाद हम लोग को निकालना क्या है? sec theta का वैल्यू और cosec theta का वैल्यू निकालना है. दो चीज का वैल्यू. और अगर मैं एक बात ये भी बोलूं, तुम लोग को पता है इसमें अगर देखा जाए तो ना तुम लोग को sec theta निकालना पड़ेगा ना तुम लोग को cosec theta. कोई बता सकते हैं कुछ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? वैल्यू निकालना है लेकिन बिना sec theta और cosec theta निकाले हुए भी सिर्फ tan को यूज करके कैसे हो जाएगा? एनीवन? So cosec theta can be 1 by sin theta and sec theta can be 1 by cos theta. नहीं ये तो है ही. मैं अच्छा ठीक है मैं पूरा पहले कंप्लीट करता हूं. सब पहले मैं क्या करता हूं, tan थीटा को लेके पहले मैं sec थीटा और cosec थीटा निकालता हूं. लेट्स फाइंड आउट. सो वी ऑल नो दैट sec square theta minus tan square theta is 1. ठीक है, sec square theta minus tan square theta क्या होता है? 1 होता है. Let us substitute the value of tan theta which is 1 by root 7. Let us substitute the value of tan theta which is 1 by root 7. तो 1 by root 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 by 7. Take this minus 1 by 7 on the right hand side. So you will have 1 plus 1 by 7, which after taking LCM will become 8 by 7. All right. So we find that sec square theta is 8 by 7. So what will be sec theta? It will be plus minus root 8 by root 7. Now students tell me, theta lies in either first or third. तो यहाँ पे वैल्यू sec theta का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ? यस दोनों होगा, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा. तो यहाँ पे हम लोग ये पे sec theta का वैल्यू प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं. And let us write down theta lies in first or third quadrant. That's why you are taking both the side. Plus ले रहे हो क्यों? Because theta first quadrant में पॉजिटिव होता है, tan first quadrant में पॉजिटिव, सॉरी first quadrant में सारे functions पॉजिटिव होते हैं. Why are you taking negative sign? You are taking negative sign because in the third quadrant tan function is negative. Tan function is positive. Rest all functions are negative. I mean negative. Tan function positive होता है और बाकी सारा functions क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो इसीलिए हमने क्या किया, sec theta का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दिया. समझ में आया बात? अब आगे देखो. sec theta का वैल्यू लेके हम लोग निकाल सकते हैं cos theta का वैल्यू. If the value of sec theta is plus minus root 8 by root 7,
the value of cos theta will be plus minus root 7 by root 8. All right, everyone. Now we know that tan theta is sin theta divided by cos theta, और हम लोग को निकालना है sin theta का वैल्यू. तो sin theta क्या हो जाएगा? It will be cos theta into tan theta. Put the value of cos theta, which is plus minus root 7 by root 8. Put the value of tan theta, which is 1 by root 7. So we are finding that root 7 gets cancelled and we are getting plus minus 1 by root 8. And you know that we have to consider both the answers because in the first quadrant sine function is positive and in the third quadrant sine function is negative because third quadrant में सिर्फ tan positive होता है. तो मुझे प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा. Done. Next. उसके बाद sin थीटा पता करने के बाद we can determine cosec थीटा and cosec थीटा will be reciprocal of sin थीटा which is plus minus root 8. इसके बाद तो सब बहुत आसान है. अब हम लोग को निकालना है cosec स्क्वायर थीटा minus sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू. अब मुझे एक बात बताना तुम लोग, अगर मैं एक बार में, देखो ध्यान देना एक बार, लिसन हियर, अगर मैं यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू प्लस माइनस पुट कर दूं और cosec थीटा का भी वैल्यू देखो, अगर मान लो sin थीटा प्लस माइनस 1 by root 8 है तो cos थीटा प्लस माइनस root 8 है. तो अगर मैं प्लस माइनस दोनों पुट कर दूं यहाँ पे और sec थीटा का वैल्यू प्लस माइनस root 8 by root 7 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो एक बात बताओ मुझे तुम लोग, क्या इससे कोई आंसर में फर्क पड़ेगा अगर मैं दोनों को मतलब प्लस माइनस दोनों साथ में लेके करूं? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका क्या कारण है? बिकॉज प्लस का होल स्क्वायर भी प्लस ही होगा. सुनना एक बार, प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो एक बार तो प्लस, मतलब मैंने कहने का मतलब है जैसे एक सम था, याद करो, जहां पे हम लोगों ने एक बार, डू यू रिमेंबर दिस सम, ये वाला सम जहां पे हम लोगों ने एक बार cos थीटा यहाँ पॉजिटिव है cos है, तो पॉजिटिव cos किस में होता है? फर्स्ट में होता है, फोर्थ में होता है. तो एक बार याद करो, मैंने उसमें फर्स्ट के लिए अलग दिखाया था कैलकुलेशन और फोर्थ के लिए अलग. बट एक बात बताओ, मैं इस समय क्यों नहीं कर रहा? आई एम नॉट डूइंग दिस इन दिस सम सेपरेटली बिकॉज अगर मैं प्लस का भी स्क्वायर करूं तो उतना ही रिजल्ट आएगा और माइनस का स्क्वायर करूं तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा. तो दोनों को मैं सेपरेटली सॉल्व करना, यहाँ पे मैं समझ ले रहा हूं उसमें कोई फायदा होगा बिकॉज दोनों से एक ही आंसर आता है. दोनों को अलग अलग दिखा के कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज यहां पे सारा जो टर्म है वो स्क्वायर है. प्लस माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 8 प्लस माइनस रूट 8 बाय रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 8 by 7. नाउ यू कैन टेक एलसीएम एंड सिंपलीफाई. ठीक है, तो ये जिसका इसका डाउट एक बार फटाफट कॉपी करना एंड द आंसर इज 48 by 64. Okay, answer is 3 by 4. सर हाँ, सर अगर हम if you want you can solve this sum by taking two different cases. That is up to you. See, I leave it up to you. मैंने तो टाइम बचाने के लिए बोला, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम दो अलग अलग केस बना के कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. तुमको अगर लग रहा है कि नहीं हमको दो अलग अलग दिखाना चाहिए तो बहुत बढ़िया है, यू आर ऑलवेज वेलकम, कोई दिक्कत ही नहीं. एक केस बनेगा, केस 1 थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा. cosec थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लेना है. मतलब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि अगर हम ऐसे करके करें तो कोई गलत नहीं है, एकदम सही है. ये तो ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा इसको इस तरह से करके. ठीक है, इसका आंसर 3 by 4 ही है. ठीक है, केस 2 थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cosec थीटा नेगेटिव होता है, sec थीटा भी नेगेटिव होता है.
इसको भी सॉल्व करके 3/4 आएगा। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ स्क्वायर है, तो हम दोनों को कंबाइन कर दिए, फर्स्ट और थर्ड को अलग अलग सॉल्व नहीं कर रहे, एक ही बात है। ऐसे भी कर सकते हो कंबाइन करके, और अलग अलग भी निकाल सकते हो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. See, now after number A's number till number 8, sorry, B's number 8, we are going to start number 9. So there are few basic concepts. Before moving to question number 9, there are few basic concepts which I need to explain to you. So I want everyone to concentrate and याद रखना, ये जो पॉइंट जो आज जो क्लास जो हो रहा है और जो नेक्स्ट 2 क्लास होगा, ये है तुम्हारा मेन पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री को समझने का। ये अगर टॉपिक समझ में आ गया तो बस आगे सब कुछ स्मूथ जाएगा। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो गया तो आगे सब कुछ में दिक्कत आएगा। So this is most important topic. So I want everyone to first listen carefully, don't copy, and when I stop, I mean the board work, and when I say ask something, you can clearly ask and clear your doubts. Okay, so please note down first. सबसे पहला चीज, I will ask everyone to make this table, which you already know in class 10. Class 10 में तुम लोगों ने already ये चीज पढ़ा है। See, there are total 10 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. There are total, you can see, 5 standard angles. These are called standard angles. Now, first of all, I'll explain you how to find out the value of these standard angles. So let us, in the first column, okay, so in the first row, sorry, let us write down angles, and in the column, let us write down trigonometric functions. So let me write down the first trigonometric function, that is sine, cos, tan, and the remaining 3, you know that they are just the reciprocal of the first 3. Now, how to write down this table? Listen. First of all, what you will do? सबके देखो, सब जगह हम फ्रैक्शन में कुछ लिखेंगे, फ्रैक्शन में, ठीक है? फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हर में 4 होगा। सारा केस में फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर I will start from 0 and then I will just write down. I'll move in ascending order. So the last will be 4. Will end at 4. 0/4 is equal to how much? 0. 1/4 को अगर हम reduced form में लिखे काट करके, it is 1/4. 2/4 का simplest form क्या होगा? Half. 3/4 का simplest form 3/4. और 4/4 का simplest form 1 हो जाएगा। अब जो भी simplest form में आया उसका स्क्वायर रूट निकालना। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फ्रैक्शन आया उसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना। सो टेल मी व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0? इज 0. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/4? हाफ। ये हो गया साइन। साइन कौन से एंगल का वैल्यू? कौन से एंगल का वैल्यू? 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 डिवाइडेड बाय 2। And sin 90 degree का वैल्यू क्या हो गया? 1. All right, everyone. Next, you know that how is sine and cos related with each other? See, in the first class, before starting this PDF, before starting trigonometric functions, you know that मैंने explain किया था कि दोनों functions, जैसे कि अगर complementary angles है, जैसे 30 degree and 60 degree complementary angles है, तो sin 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू के बराबर है। बताया मैंने। तो एक बात बताओ, cos 0 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? कोई बता सकता है? sin 90। यस, cos का कंप्लीमेंट्री फंक्शन sin है। व्हाट इज कंप्लीमेंट्री ऑफ 0 डिग्री? 90 डिग्री। मतलब cos 0 डिग्री का वैल्यू sin 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा।
cos 30 का वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ तो? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30? 60, sin 60 के बराबर। मतलब क्या होगा आंसर? √3/2। और cos 45 का वैल्यू सेम 1/√2। cos 60 का वैल्यू sin 30 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। Alright everyone, next we know that tan theta is equal to sin theta divided by cos theta। इसका मतलब tan 0 डिग्री sin 0 डिग्री by cos 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, sin 0 डिग्री by cos 0 डिग्री के बराबर होगा। तो एक बात बताना, tan 0 डिग्री के लिए हम sin 0 डिग्री का वैल्यू को cos 0 डिग्री का वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है? 0 0 होता है। 0 divided by 1 is 0. What is 1/2 by √3/2? 1/√3। It is 1/√3। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे √3 आ गया। 1/0 कितना होगा? Undefined। मतलब 1 को 0 से डिवाइड करके कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अनडिफाइंड। मतलब दिस इन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी आई मीन डिफाइंड, इसलिए इसको अनडिफाइंड लिखते हैं। Cosec का वैल्यू, cosec you know that how is cosec related? It is related with sine function where cosec theta is nothing but the reciprocal of sine function। तो फिर sin cosec 0 डिग्री का वैल्यू sin 0 डिग्री का वैल्यू के रेसिप्रोकल होगा, तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। एंड 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/3, इसका रेसिप्रोकल 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। सिमिलरली sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा बताओ? बताना एक बार। cosec, तो मतलब cosec का रेसिप्रोकल होगा 1 का रेसिप्रोकल, cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/2, √2 एंड सो। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? tan थीटा का, तो बस रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो। तो मैं ये पार्ट कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सबको पहले अपने अपने कॉपी में पहले ये टेबल बना लो फटाफट, टू फास्ट। आई एम गिविंग 5 minutes टाइम, हरी टू फास्ट। नाउ आफ्टर यू नो द टेबल पार्ट, लाइक कि चलो ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स का हमको वैल्यू तो पता ही है, क्लास 10 में भी पता था सबको, लेकिन चलो उसको हम लोगों ने वापस से एक बार रिवाइज कर लिया। नाउ सपोज इफ आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 135 डिग्री, और इफ आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 270 डिग्री, या फिर मैं ये बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 315 डिग्री, so it becomes very difficult for you to find out the values of these angles which is greater than 90। ठीक है, सारे स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू तो पता है, लेकिन अगर मान लो कोई एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो फिर कैसे करके ये सारी चीज का वैल्यूज निकालेंगे? सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन whose angle is more than 90 degree। I repeat, how to find out the value of trigonometric functions if the angle of the function is more than 90 degree। So this is the next topic we are going to study today। So I want everyone to copy down the algorithm, I mean algorithm means steps, and everyone write down the steps which I am giving, using which we will find out the value of any trigonometric function whose value is more than 90 degree। So everyone write down the steps।
सो एवरीवन कॉपर डाउन जो मैंने भी लिखा है बोर्ड पे। Copper down these steps which will help us in determining the value of trigonometric, in short मैंने TRIG लिखा है, functions whose angle is more than 90 degree. So this is the step following which we will find out the value. Please copy down first. Now let me explain you the meaning of few symbols which have been used here. Okay, this is n, small n. Small n means any natural number. It cannot be anything other than natural number. This is phi. Phi means symbol. एक symbol है जो एक angle को denote करता है less than 90 degree. This angle cannot be more than 90 degree. All right. Now you just आराम से बस देखते जाओ. मेरा काम है समझाना कि ये क्या है. ठीक है? ध्यान. बस जब मैं बोलूंगा रेफर करने के फिर कॉपी में रेफर करना. ठीक है? जो भी पॉइंट पे बोलूंगा. नाउ सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट निकालना सिखाता हूं. ठीक है? ध्यान. नाउ लिसन. सबसे पहला चीज मैं क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं which you know that ये स्टार्ट कहां से होता है. पेन का मेरा टिप देखना. पूरी अटेंशन बोर्ड पे होना चाहिए. कोई कॉपी नहीं करेगा. देखना एक बार. पेन का टिप मैंने यहां पे होल्ड किया, ये लाइन पे होल्ड किया. ठीक है? नाउ एक बार ध्यान से नोट करना. अगर मैं ये बोलता हूं कि 1 into 90, नाउ टेल मी एक बार 1 into 90 को हिंदी में बोलो अपने आप में. एवरीवन स्पीक. 1 into 90 मतलब एक बार 90. कितना बार 90? 1 times 90 घूमो. 1 times 90 घूमना है हम लोग. तो अगर हम 1 बार 90 घूमेंगे मतलब यहां से स्टार्ट अगर होता है तो मैं कहां पे आके रुकूंगा? ये लाइन पे आके मैं रुक जाऊंगा. ठीक है एवरीवन? अगर मान लो यहां पे 30 डिग्री होता है तो एक बार 90 प्लस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताओ तो? ये लाइन के बाद वाला क्वाड्रेंट या ये लाइन के पहले वाला क्वाड्रेंट? टेल मी. तो ये हो गया ये लाइन के बाद वाला. तो ये अगर फर्स्ट है तो ये कौन सा होगा? फर्स्ट के बाद क्या आता है? सेकंड ऑब्वियसली. तो ये फर्स्ट है तो ये कौन सा हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट. मतलब एक बार 90 1 times 90 घूमो और प्लस कर दो 30 मतलब प्लस हो जाओ 30 मतलब और कितना आगे बढ़ो? प्लस मतलब आगे बढ़ना है हम लोग को. और माइनस मतलब पीछे जाना है. तो प्लस 30 मतलब हम लोग को ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? सेकंड क्वाड्रेंट में. ऑलराइट. अब देखना नेक्स्ट. अगर मान लो यहाँ पे 2 बार 90 होगा तो 2 बार 90 2 into 90 का मतलब कितना बार राउंड लगाना है 90 डिग्री का? 2 बार. तो 2 बार 90 का मतलब क्या हो गया? मतलब स्टार्ट यहीं से होगा. ठीक है? ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है. तो एक बार 90 यहाँ पे आ गया, 2 बार 90 यहाँ पे आ गया. तो 2 बार 90 मतलब ये लाइन पे खड़ा हो गया. ठीक है? पॉइंट. अब एक बात बताओ, इसके बाद प्लस है या माइनस है बताना? 2 बार 90 के बाद प्लस है. प्लस मतलब वो आगे जाएगा, लाइन के आगे जाएगा या उस लाइन के पीछे जाएगा? चल आगे. वो लाइन के आगे. आगे मतलब फॉरवर्ड जाएगा. मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताओ तो? थर्ड क्वाड्रेंट हुआ. समझ में है सबको को? अब देखना नेक्स्ट. 4 बार 90. लिसन हियर. 4 बार 90. 4 बार 90 का मतलब क्या हो गया? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? 4 बार 90 का मतलब हो गया 1 2 3 4 यहां पे आ गया. देखो 3 4 बार 90. तो एक बात बताओ मुझे, 4 बार 90 का मतलब 4 times 90 का मतलब हो गया 1 complete round. 1 complete round means what? 4 बार 90 क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? 4 complete round मतलब 4 into 90 का मतलब हो गया 1 complete round. मतलब ये पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम का जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ये पूरा एक कंप्लीट राउंड लगा के जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक मतलब वापस स्टॉप हो गया. इसको बोलते हैं 4 बार 90. 4 गुना 4 times 90. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इसके बाद प्लस 30 है. तो बताओ तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट. आई होप इट इज क्लियर. अब एक बात बताओ मुझे, 4 बार 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब मुझे एक बात बताओ,
8 into 90 प्लस 20। अच्छा एक बात बताओ, 4/90 का मतलब एक कंप्लीट राउंड हुआ कि नहीं? सबको समझना, 4 कंप्लीट राउंड मतलब सॉरी 4/90 का मतलब एक कंप्लीट राउंड, समझ में आया ना? एक कंप्लीट राउंड मतलब 4/90 डिग्री हम लोगों ने चक्कर लगाया, 4 तो 90 डिग्री को हम लोगों ने कवर किया है। तो 8/90 का मतलब कितना हुआ बताओ तो? दो कंप्लीट राउंड। सीधा से कैलकुलेशन, सीधा कैलकुलेशन। 8 का मतलब क्या होता है? 2 into 4, सो 2 into 4 into 9 मतलब 4 into 90 मतलब एक कंप्लीट राउंड। तो 8/90 का मतलब कितना हो गया? दो कंप्लीट राउंड हुआ कि नहीं बताओ मुझे? दो कंप्लीट राउंड का मतलब हो गया कि नहीं? 8 into 90, 8 into 90 मतलब दो, एक और दो, दो कंप्लीट राउंड, समझ में है? तो एक बात बताओ, दो कंप्लीट राउंड मतलब एक बार और दो बार, उसके बाद प्लस 20 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बता सकते हो तुम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया बात? अब बताओ मुझे एक बार सबको, फ्रेश मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 into 90 प्लस 40 डिग्री, 40 डिग्री। एनीवन कैन टेल मी कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ना ये चीज मुझे एक जन समझाओ, बढ़िया से समझाओ, मैंने जैसे समझाया। 16 into 90 मतलब कितना बार 90 डिग्री? सॉरी 16 into 90 का मतलब कितना? 4 कंप्लीट राउंड, ठीक है? तो 4 कंप्लीट राउंड मतलब यहाँ से अगर चालू हो रहा है तो यहाँ पे वापस आके रुक जाएगा। तो बोल रहे तुम सोचे होगे कि यहाँ पे तो मैंने एक ही बार राउंड लगाया, एक बार नहीं मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब 4 कंप्लीट राउंड मतलब तो वही आना है ना। इसके बाद प्लस 90 प्लस 40 है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? प्लस मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो याद रखना, अगर इसके बाद कुछ भी चीज ऐड होगा तो वो लाइन के बाद वाला क्वाड्रेंट, और माइनस होगा तो वो लाइन के पहले वाला क्वाड्रेंट। कीपिंग इन माइंड कि ये जो एंगल है ये अक्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ तो? acute क्या होना चाहिए? अक्यूट। अक्यूट का मतलब लेस देन 90। 90 क्योंकि अगर मान लो ये होता है 240 डिग्री, एक बात मान लेते हैं 240 डिग्री ले लिया मैंने, और तुमने लिखा है 16/90। 16/90 का मतलब क्या होता है? 4 कंप्लीट, 4 राउंड। चलो यहाँ पे आ गए। और 240 तो वो फिर थोड़ी ना तुम्हारे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस 240 थोड़ी ना वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो याद रखना हमेशा ये जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए? लेस देन 90 होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। समझ में आया बात? अब बताओ मुझे सबको, 20/90 माइनस 30 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे? देखो पहला बार 5 राउंड। 20, 5 राउंड, वेरी गुड। 5 राउंड मतलब यहीं पे आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद माइनस है, माइनस मतलब हम लोग इसके आगे नहीं बढ़ने वाले, लाइन के पीछे। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया सभी को? कोई बात? अब बताओ मुझे 22/90, चलो 23/90 प्लस 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो इसका भी बहुत सिंपल तरीका है। ये 23 है तो पहले तुम देखो कि 20 बार, क्योंकि 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल नियरेस्ट मल्टीपल क्या है? 20 है, ठीक है? तो 5 कंप्लीट राउंड पहले घूम जाओ। 5 कंप्लीट राउंड, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार। तो 5 बार मतलब कितना हो गया तुम्हारा? 5 कंप्लीट राउंड मतलब 20 बार कवर कर लिया हमने, यहाँ पे आ गया। अभी और क्या है? 3 बाकी है अभी और। तो यहाँ पे 20 बार हुआ, 21, 22 और 23 यहाँ पे आया। उसके बाद क्या बताओ तो इस लाइन के बाद तुमको आगे प्लस करना है, ऐड करना है, आगे जाना है या पीछे प्लस जाना है? 45। प्लस 45 मतलब ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया सभी को ये पार्ट, क्वाड्रेंट वाला पार्ट? ठीक है, अब देखो ध्यान से नेक्स्ट पार्ट। अगर किसी को क्वाड्रेंट वाले पार्ट में दिक्कत है तो बताना। हाँ टेल मी। हाँ सर अगर जैसे क्वेश्चन में है सर 2 into 90 प्लस 0 डिग्री, तो सर वो कौन एक सा सेकंड क्वाड्रेंट होगा? लिसन हियर, ये सारे सिचुएशंस को अभी छोड़ दो। एक बार तुम लोग ये बताओ, क्वाड्रेंट निकालने में दिक्कत हुआ किसी को? नहीं हुआ तो अब एक बार इस पार्ट को एक बार के लिए रहने देते, जस्ट अ मिनट। आई विल गिव ऑल योर आंसर्स, डोंट वरी। 180 होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 270 होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, डोंट वरी। पहले मैंने जो एल्गोरिथम लिखवाया है पहले मैं एक बार वो कंप्लीट करूं। तो देखो सबको एक क्वाड्रेंट निकालना तो आ गया।
और ये बात तो सबको को क्लियर है ना कि हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से क्यों कर रहे हैं? वो जिस दिन मैंने क्वाड्रेंट वाला सिस्टम समझाया था उस दिन ही बताया था यहाँ से स्टार्ट होगा और किस डायरेक्शन में जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज एंगल इज मेजर्ड टू बी पॉजिटिव इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज. सो प्लीज डोंट मूव दिस वे. ओके, नेक्स्ट. अब मैं बात करता हूं एक बार कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. एक बात बताओ, साइन थीटा का साइन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ? cos 60. और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? cos. मतलब हम लोगों ने लास्ट डे जिस दिन हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था उस दिन ही ये चीज देखा है कि अगर मान लो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सपोज दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो कौन से दो फंक्शन का इस एंगल्स के लिए वैल्यू सेम होगा? एक साइन कॉस, दूसरा टैन कॉट, और तीसरा क्या बताओ तो एक बार? Second cos. सेकंड कॉसेक. सेक का और कोसेक का ये भी पता है तुम लोगों को, ठीक है? एंड सिमिलरली वाइस वर्सा मतलब cos tan sin 80 के बराबर होगा, cot tan sin tan 80 के बराबर होगा, cosec 10 डिग्री cosec 10 डिग्री और sec 80 डिग्री के बराबर. सो ये तो पता है. मतलब अगर मैं तुम लोग को ये बोलूं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ साइन, योर आंसर विल बी व्हाट? cos. Complementary of tan, your answer will be cot, and vice versa. Complementary of sec, your answer will be cosec, and vice versa, right? अब एक बात और बताओ तो रेसिप्रोकल अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल फंक्शन कौन सा है? वेरी गुड. tan का रेसिप्रोकल कौन सा फंक्शन है? cot. और sec का रेसिप्रोकल कौन सा है? ठीक है. अभी रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब रेशियो से रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंगल से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये चीज क्लियर हो सकता है. अब देखो आगे. अब ध्यान दें. लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव साइन, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से वी हैव गॉट साइन 225 डिग्री. इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है. ध्यान रखिएगा, साइन 225 डिग्री का वैल्यू निकालना. अब मैं चाहता हूं सब कोई अपने अपने कॉपी में देखिए. जब मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 1 अपने कॉपी में देखिए. सबसे पहला चीज, ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन. एंगल क्या है? 225. क्या ये एंगल 90 से बड़ा है? यस. अगर बड़ा है तो 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे. पहला स्टेप क्या है? सब कोई बोलो मुझे, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? बताओ. Finding out n into 90. मतलब मुझे एंगल को थीटा को एक्सप्रेस करना है n into 90 प्लस माइनस फाई में. n नेचुरल नंबर है, फाई अक्यूट एंगल है. तो क्या मैं 225 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं? 2 into 90 कितना होता है बताओ तो? 180 डिग्री होता है कि नहीं? 2 into 90 कितना होता है? 180 डिग्री. और 180 में क्या ऐड करने से 225 डिग्री होगा बताओ? 45. ठीक है. हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम ऐसे भी लिख दें 3 into 90. व्हाट इज 3 into 90? टेल मी. 270. 270 में क्या माइनस? अब हम माइनस ही तो सोच सकते हैं ना, क्योंकि ये एंगल 225 है. 270 में क्या माइनस करने से 225 आएगा बताओ? 45. ठीक है. अब एक बात बताओ, क्या हम ऐसे सोच सकते हैं 5 into 90 या 4 into 90? बताओ तो. क्या यहाँ पे 4 into 90 या यहाँ पे 1 into 90 सोच सकते हैं? बताओ क्यों नहीं सोच सकते? बताओ क्या रीजन है? बिकॉज वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज हम लोग को पता है कि n into 90, ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वो सही है, लेकिन ये जो ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हैं वो होना चाहिए लेस देन 90. तो ये पॉसिबल है 3 into 90 के लिए ही पॉसिबल है इस सब में, या 2 into 90 के लिए पॉसिबल है. बाकी 4 into 90 के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 4 into 90 360 होता है, और 360 में जो हम सबट्रैक्ट करेंगे टू गेट 225 डिग्री वो 90 से बड़ा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 145 होगा ना शायद. सॉरी, नॉट 145, इट विल बी 135 डिग्री. ठीक है, इट विल बी 135 डिग्री, जो कि 90 से बड़ा हो जाएगा. तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे.
और ना ही 1 into 90 वाला फॉलो करेंगे, बिकॉज 1 into 90 is 90। 90 में क्या ऐड करने से 225 आएगा, बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, तो वी विल अवॉइड दिस, क्योंकि 90 से बड़ा है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेप नंबर 2, चेक कर एक बार सबको। स्टेप नंबर 2 है चेक द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा। थीटा ये है, इसका क्वाड्रेंट को चेक करो, ठीक है। क्वाड्रेंट को चेक करने के बाद देखो कि उस क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। होम क्वाड्रेंट, मैंने ये जो टर्म यूज किया होम क्वाड्रेंट, होम क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पहला वाला सबका घर है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहला वाला क्वाड्रेंट सब फंक्शंस का घर है, बोल सकते हैं? यस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है बताओ तो? साइन एंड मतलब वो उसमें पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? सब tan और cos, tan और cot, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब एक बात बताओ, हम क्वाड्रेंट को चेक करेंगे, तो क्वाड्रेंट को अगर हम चेक करें तो 2 बार 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव। तो आगे नेगेटिव साइन दे देना। हो गया सेकंड स्टेप ओवर। अगर वो उसका क्वाड्रेंट नहीं है तो नेगेटिव, अगर वो उसका क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। साइन थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट साइन का क्वाड्रेंट नहीं है तो नेगेटिव दे दिया मैंने। हो गया क्लियर? आगे देखो थर्ड स्टेप में हम लोग को n चेक करना होगा। अब बताओ यहाँ पे n क्या है, ऑड या इवन है? इवन। देखो लिखा हुआ है वहां पे कि अगर इवन होगा, सुनना यहाँ पे सबको, अगर इवन होगा तो हम लोग को गिवन फंक्शन, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वैसे ही लिखना पड़ेगा। मतलब साइन है तो साइन लिखना पड़ेगा, tan है तो tan लिखना पड़ेगा, cot है तो cot लिखना पड़ेगा। अगर ऑड होगा तो क्या लिखा हुआ है देखो तो वहां पे, इफ n इज ऑड क्या लिखा हुआ है देखो तो, इक्विवेलेंट से हम लोग को चेंज करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो गिवन फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब साइन क्या में चेंज हो जाएगा बताओ तो? समझ में आया तो बात? लेकिन यहाँ पे इवन है तो साइन साइन ही रहता है। और लास्ट में हम लोग फाई लिख देंगे, मतलब जो फाई है वो लिखेंगे लास्ट में। ये सारा चीज इग्नोर करके हम लोग लास्ट में फाई लिखेंगे, मतलब 45 डिग्री। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री? √3/2, नो 1/√2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये वाला पार्ट, 3/90, इस तरीके से भी सेम आंसर आएगा। 3/90 यहाँ पे आएगा, उसके बाद -45 डिग्री, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताओ मुझे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है थर्ड में, नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट तीसरा स्टेप में देखना है ऑड है या इवन है। क्या ये ऑड है या इवन है बताओ? ऑड है तो हम लोग चेंज करेंगे या सेम रखेंगे? चेंज साइन क्या में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और लास्ट में 5 है 45 डिग्री। Please don't write minus, only write 45 degree, and your answer is 1/√2. Is this okay everyone? Clear? एक बार ये एग्जाम्पल, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, एक बार ये एग्जाम्पल कॉपी करो। मैं अभी सारा आंसर अभी मैं देने के लिए, अभी बाकी है बहुत सारा सम्स का, मैं ऐसा एग्जाम्पल देने का कि 180 कौन से क्वाड्रेंट में अलाई करेगा, जैसे 2 into 90 या 3 into 90 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। आई विल गिव योर आंसर, डोंट वरी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक बार रुको, ये पहले कॉपी करो। Now I want everyone to solve the next sum, that is the value of sin 315 degree, the value of cos 315 degree, and the value of tan 315 degree. Everyone solve these three questions. The value of sin 315, cos 315 and tan 315. Too fast. So everyone tell me, what is the value of sin 315 degree? -1/2। तो देखना एक बार कैसे, ध्यान देना एक बार। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 into 90, which is 360. Now 360 minus how much is 350? It is minus. तो खाली 1/√2। It is minus, note down एक बार, it is minus 45 degree, ठीक है। 4 into 90 minus 45, 4 into 90 minus 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है।
इवन है तो साइन साइन रह जाएगा, एंगल इज 45 डिग्री, आंसर इज -130. Please check once. Now few students were saying that it will be only plus 1 by root 2. Am I correct? I think few students were telling. मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा आंसर क्यों 1 by root 2 क्यों ऐसा गलती आ रहा है, मतलब क्यों तुम्हारा आंसर में 1 by root 2 आ रहा है, कंफ्यूजन क्या है, प्लीज सुनना. ऐड किसी का ऐसा डाउट है? मैं जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता. देखना है, मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, सुनना ही पड़ेगा, ठीक है. देखो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है. सबसे पहला चीज तुमने लिखा होगा इसको 3 into 90 प्लस 45 डिग्री. देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ आया नहीं? हाँ सर. लिखा है. अब देखो तुमने गलती क्या की, हम बता रहे हैं. तुमने पहले क्या किया कि ये 3 ऑड है तो साइन को कॉस में चेंज कर दिया. किया है कि नहीं किया? हाँ सर. अब देखो, अब दूसरा गलती तुमने क्या किया है, 3 into 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है? तुमने क्या किया पता है, इसको ना देख के तुमने देखा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, क्या होता है बताओ? तुमने यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया. एक बात बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन cos 315 था या sin 315 था, बताओ? तो वो sin 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव. तो तुमको नेगेटिव पहले, इसीलिए मैंने क्या बोला, तुमको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. समझ में आया तुम्हारा गलती? तुमने क्या किया, तुमने चेंज कर दिया, और चेंज किया हुआ वो देखा तुमने कि ये चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव. ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए तुम्हारा आंसर 1 by root 2 आ रहा है, -1 by root 2 नहीं आ रहा. 1 by root 2 इज द रॉन्ग आंसर. आई होप जो जिसका भी ये डाउट था समझ में आ गया गलती. यस एनीवन? क्लियर है? साइना का भी डाउट था, क्लियर हुआ? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो ये गलती मत करना. हम लोग को गिवन फंक्शन को देखना है ना, चेंज किया हुआ फंक्शन को नहीं देखना. ठीक है, ये गलती हो रहा था. नाउ द आंसर इज -1. नाउ सी cos 315 का वैल्यू यूज करना. सर हम लोग का भी अकाउंट्स का ट्यूशन है. जस्ट नॉट लीव तो डोंट वरी, जस्ट. तो ये हो गया तुम्हारा 3 into 90 प्लस 45 डिग्री. 3 into 90 प्लस 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताना? फोर्थ क्वाड्रेंट. 3 by 90 प्लस 45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव. पहले देखो याद रखना, जो गिवन फंक्शन है वो देखना होता है. तुम लोग चेंज मतलब ऑर्डर तो चेंज करके चेंज किया हुआ को मत देखो, गिवन फंक्शन को देखो कि वो फंक्शन उस क्वाड्रेंट में क्या होता है. उस क्वाड्रेंट में cos फंक्शन पॉजिटिव होता है, ऑर्डर तो cos साइन में चेंज हो जाएगा. आंसर इज 1 by root 2. क्लियर हुआ सबका? और इसका आंसर क्या है बताओ? -1. समझ में? अब मैं एक लास्ट सम खाली बताता हूं, देन आई लीव टुडे. ओके, जस्ट अ मिनट, एक बार लास्ट सम देखो. ये लास्ट सम क्या है देखो. देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंगल इतना लार्ज होता है, इतना बड़ा एंगल होता है कि हम लोगों को देख के पता ही नहीं चल पाता है कि कितना into 90 बस क्या ऐड करने से होगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से लेट मी टेक सपोज sin 1230 डिग्री. समान लीजिए सब, देखना ही पड़ता है. जैसे ये वाला सब, ठीक है. देखो यहाँ पे एंगल इतना बड़ा है, अभी जितना भी हम लोगों ने सम किया एक बार में देख के पता चल जा रहा था कि इतना into 90 प्लस इतना करने से ही आ जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी होगी. इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, नोट डाउन. पहले क्या करना तुम लोग, उस एंगल को 90 डिग्री से डिवाइड करना. कैसे से डिवाइड करना? 90 से. बताओ एक बार 90 1 जा 90 होगा पहला स्टेप में, फिर ये हो जाएगा 93 जा 60 डिग्री का जाएगा. क्या मैं 1230 को, क्या मैं डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 90 into 30 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूं मैं? मतलब हम लेकिन अपने फॉर्मेट को फॉलो करेंगे. पहले 90 नहीं, पहले क्या लिखेंगे? एक ही बात है, 90 into ये लिखो. समझ में आया ना मेरी बात? फॉर्मेट क्या था? n into 90. 90 into 30 ना लिख करके 13 into 90 लिखेंगे.
13 into 90 degree plus how much? 60 degree. 60. तो 13 बाय 90 मतलब पहले देखो 13 बाय 90 मतलब 3 कंप्लीट राउंड लगा देते हैं, 3 कंप्लीट राउंड पहले लगा देते हैं, तो 12 बाय 90 हो गया। एक बार, दो बार, तीन बार, 3 कंप्लीट राउंड मतलब 12 बाय 90। लेकिन यहाँ पे 13 है तो 12 13, उसके बाद प्लस है, प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये ऑड है या इवन है? और ऑड, तो साइन को चेंज कर दो। द आंसर इज हाफ। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। Now there are few confusion till now which I have not solved. What is that? कि sin 180 ये सब किस क्वार्टर में लाई करेगा? 2 into 90 plus 0 होगा तो किस क्वार्टर में लाई करेगा? ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में हम सिर्फ इतना तक ही रहने देते हैं। Please everyone copy down till here and you'll be given few homework. Please complete those sums so that in the next class you follow things properly. Also I'll share today's video just now only if possible, and please repeat this video once again so that ये quadrant वाला part, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट, ये सारी चीज प्रॉब्लम है। सो विद दिस आई एंड टुडेस क्लास। थैंक यू एवरीवन।